In a vibrant democracy, the discourse that shapes public opinion is paramount. However, when the discourse veers into a territory of hate, it threatens the very fabric of our social cohesion and sanctity of our electoral process. A very warm and pleasant morning to one and all. On behalf of Faculty of Law, University of Delhi, we extend our heartfelt welcome to each one of you to this symposium on hate speech and electoral politics in India. The symposium brings together scholars, administrators, and leaders to reflect on the role of speech, law, and ethics in shaping our democratic consciousness. It is an honor to host such an intellectually stimulating dialogue under the aegis of Faculty of Law, an institution that has been beacon of legal education and public reasoning for over a century. We are privileged to have amidst us distinguished personalities from the realm of governance and academia. May I invite our revered dignitaries to kindly grace the dais. May I invite our chief guest, His Excellency Shri Shiv Pratap Shukla, Honorable Governor of Himachal Pradesh, to please come on dais, sir. I invite our patron-in-chief, a visionary academic leader, Professor Dr. Yogesh Singh, Honorable Vice-Chancellor, University of Delhi. I would like to welcome Professor Dr. Anjuvali Tiku, Dean and Head, Faculty of Law, University of Delhi. I invite Professor Dr. L. Pushpkumar, Director, Integrated Law Course, Faculty of Law, University of Delhi. Ladies and gentlemen, let's give a resounding round of applause for our distinguished dignitaries on stage. As a tradition, we begin this auspicious occasion by invoking the blessings of Almighty. The lighting of the lamp symbolizes the dispelling of darkness and the dawn of knowledge. May I request all our dignitaries to please proceed for the ceremonial lighting of the lamp. Esteemed dignitaries, for gracing this moment of enlightenment. To celebrate our shared identity and pride as members of the University of Delhi, let us come together for Diyu Kulgeet, the anthem that embodies the values, unity, and aspirations of our academic community. I invite all present to stand and join in as we resonate with the spirit of our beloved university. May I also invite Ms. Kanupriya and Ms. Aritra to kindly come on stage. सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन ज्ञान धाराओं का संग निषदित सत्यम
शोक श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे हैं छात्र और छात्राएं दीक्षित नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम We now proceed to felicitate our honored dignitaries as a gesture of our deep respect and gratitude. May I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Sir, to felicitate our Chief Guest, His Excellency Shri Shiv Pratap Shukla Ji. Has special affection for Indian art and under the Vocal for Local campaign, he often gifts Madhubani painting to various heads of the state and other important dignitaries. The Faculty of Law, University of Delhi is carrying forward this initiative of Honorable Prime Minister by honoring our guest, His Excellency, with a Madhubani painting. I invite Mr. Shivam Pandey to present a book to our chief guest. Thank you, sir. May I now request Professor Anjuwali Tiku, Dean, Faculty of Law, to felicitate our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Yogesh Singh. May I invite Mr. Sanjeev Singh to present a book to our Honorable Vice Chancellor, sir. Thank you, ma'am. Now I invite Professor L. Pushpakumar sir to felicitate Professor Anjuwali Tiku ma'am, Head and Dean of Faculty of Law, University of Delhi. I also invite Dr. Smriti Singh ma'am to present a book to our Dean ma'am. Now I invite Dr. Digvijay Singh sir to felicitate Professor L. Pushpakumar, Director, ILC, Faculty of Law. I invite Akriti Pandey Mishra ma'am to present a book to our Director sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
To formally commence the proceedings and set the intellectual tone for today's deliberations, may I invite Professor Dr. Anjuvali Tiku, Dean and Head, Faculty of Law, University of Delhi. Professor Tiku has always been an ardent proponent of pushing the boundaries of legal education, ensuring that the Faculty of Law remains at the vanguard of excellence in the legal field. Her teaching experience spans over 3 decades, including notable contributions at the National University, Delhi, ILI, and Delhi Judicial Academy. Okay, ma'am. We invite you to speak. Thank you, ma'am. धन्यवाद निधि और योगेश। चांस की बात है, हमारे वाइस चांसलर साहब का नाम भी वही है, तो मैं अपने मॉडरेटर को एड्रेस कर रही थी। जी धन्यवाद योगेश और निधि फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टू द डायस एंड पोडियम। सर्वप्रथम मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हार्दिक अभिनंदन है हमारे मुख्य वक्ता महामहिम श्री शिव प्रताप शुक्ला जी का, और ये दूसरा आयोजन है जिसमें हमने इनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया है। और किन शब्दों से आपका स्वागत करें और धन्यवाद करें और साथ ही साथ अभिनंदन करें कि आगे भी, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, कि आगे भी वी लुक फॉरवर्ड टू कि आप अक्सर हमारे साथ आकर अपने भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को और जो आगे हमें करना है उसके लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। Faculty of Law is organizing this symposium primarily on a juncture where we understand that हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं और अपने जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी हम बात नहीं करते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। तो हमारा पुराना विचार है जहाँ हम अक्सर कहते हैं साडा हक एथे रख, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए, इट्स नॉट ओनली ऑलवेज साडा हक एथे रख। Before you ask for your right, let us be responsible towards our duties, and one of that is that let us be respectful, सम्मान से दूसरों को स्थान दें, अपनी जो भी भाषा है उसका मर्यादा का ध्यान रखें। और hate speech is one aspect wherein we generally think and talk on the lines that this is my space, my freedom, my right, let me speak and express the way I wish to and I want to. But I believe whenever we are talking on those lines, we need to understand that we are in a democratic setup wherein rights do exist, but then there are simultaneously duties also. So I cannot demand and ask for my right unless I respect others' rights as well. So it is that notion that we are trying to carry forward, and more so given the fact that we have got huge student body with us, और इस हॉल में जितने भी लोग हैं उसमें ज़्यादा परसेंटेज स्टूडेंट्स की है जो कि नई जनरेशन की है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्चुअल स्पेस से प्रभावित होती है। मेरा आग्रह है और मेरा विचार भी है कि इस सिंपोजियम के द्वारा हम एक उस विचार को सामने लाएंगे जिसमें हम अपने अधिकारों की बात तो करें, हम अपने स्वाभिमान की बात भी करें, लेकिन दूसरे के भी स्वाभिमान का ध्यान रखें, so that we have a balanced approach as to how do we move forward and how do we conduct ourselves. So on that note, महामहिम जी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है फैकल्टी ऑफ लॉ में। और अब मैं अपने प्रोफेसर योगेश सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद कर रही हूँ कि इन्होंने कनाट भवन से इसको वेन्यू को यहाँ लाए। एंड सी सर, एवरी टाइम देयर हैज बीन दैट कंसर्न दैट द programs are organized, well organized, and they should look lubricated, and that's where you ensured. And last minute, the Vice Chancellor visited this and Kannada Bhavan, and he's decided no, we are going to hold it here. So बहुत बहुत स्वागत है सर, और ऐसे कई सारे कार्यक्रमों के लिए आपके सामने पेश होते रहेंगे और इसी मुखर भाषा के साथ और व्यवहार के साथ is so very warm and so very forthcoming that anything that you ask him and he says yes,
it's altogether different that there are certain administrative contingencies and conveniences that he needs to look after and take care of. But thank you very much for your support at every point of time. और उसी के साथ आपका स्वागत है कि आपने समय निकाला. आपकी मुश्किल है कि आपको कहीं पहुंचना है 2:30 बजे. So keeping in mind time constraint, I'll just wind up. और हमारे साथ पुष्प कुमार जी हैं, ILC के डायरेक्टर हैं. Who is the convener here, faculty convener for this program? And I'll not get into the content as to why we have floated this, but having given you an idea that the freedom of speech and expression in a democratic setup cannot be absolute, and we have to have somewhere a line demarcating which is very thin, so that we need to understand the nuances that when this freedom of speech becomes hate speech, more so when we have now recognized hate speech and we have also recognized terrorism, given the fact that we are undergoing electoral processes in different states at different point of time in the near future, I believe this is the apt moment to hold a symposium on this theme. And given our dignitaries on the dais, they would be sharing the academic and administrative perspective as to how do we balance the two. Thank you very much for bearing with me at this moment and sparing your time. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your warm and insightful welcome. Your words has perfectly set the tone for the discussions to follow. We now invite the academic and administrative head of our university, a leader renowned for his commitment to research, innovation, and institutional excellence, Professor Dr. Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, Sir, University of Delhi. An acclaimed academician in computer engineering, Professor Singh has been instrumental in implementing the National Education Policy 2020 within the university and have previously served as a Vice Chancellor of Delhi Technological University. His leadership has emphasized innovation, research, quality, and excellence. Sir, we may request you to share your presidential remark. Thank you. Namaskar and good morning to all of you. Namaskar. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, प्रोफेसर अंजू वाली टिक्कू, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर एल पुष्प कुमार, डायरेक्टर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, other respected and distinguished faculty members, and my dear students, friends. Good morning to all of you. Good morning. आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, हेट स्पीच एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो फैकल्टी ऑफ लॉ का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इतने अच्छे टॉपिक पर ऐसे समय में जब अब चुनावी माहौल देश का गर्म हो रहा है, अलग करवट ले रहा है, ऐसे समय में इस पर बात करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय राज्यपाल जी का कि उन्होंने इस विषय पर बोलने के लिए अपना समय निकाला। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक गर्व की बात है कि इतने सहज, सौम्य हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आज हमारे बीच में हैं, आए हुए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत भी करता हूँ। कबीर ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए और मन का आपा खोना नहीं चाहिए कि हम किसी भी तरीके से किसी आवेश में कुछ बोलें, और ऐसा बोलना चाहिए कि जो आपको भी अच्छा लगे, आपके लिए भी अच्छा हो, शीतलता प्रदान करे और सामने वाले को भी वो दे। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। कबीर तो बहुत साल पहले आए थे, चले गए, यानी ये विषय उस समय भी प्रासंगिक था कि कबीर को लिखना पड़ा। और कबीर ने और भी इसमें कहा कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संभारे बोलिए,
शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द के हाथ और पैर तो नहीं है, लेकिन एक औषधि का काम करता है और दूसरा घाव भी करता है। और जो शब्दों के बाण हैं वो बहुत दूर तक, देर तक घाव करते हैं, और वो घाव रिश्ता रहता है शब्दों के घाव। इस कारण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है। ऐसा भी कहा जाता है ना कि अक्षर क्या होता है? अक्षर वो होता है जिसे क्षर नहीं किया जा सकता, यानी मारा नहीं जा सकता। आपने बोल दिया तो बात गई, आपसे निकल गई। इसलिए इसमें एक सावधानी रखनी चाहिए, और सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का और वक्तव्यों का बहुत प्रभाव पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है इसमें। एक ब्राजील की कवित्री हैं मार्था मेरिडोस। मार्था मेरिडोस, नोबेल प्राइज मिला उनको एक पोएम लिखने के लिए। तो मार्था मेरिडोस की उस पोएम की के हिंदी वर्जन का मैं 2-3 लाइनें कोट करूंगा अपने बच्चों के लिए जो बैठे हैं। वैसे तो बड़ों के लिए भी उतना ही अच्छा है वो, कि मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई असर नहीं। फिर बात कहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई असर नहीं। ये शब्दों की ताकत है, और उस ताकत का नाजायज बेजा इस्तेमाल करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए वसीम बरेलवी साहब ने भी सही कहा। उन्होंने कहा कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका है सिविलाइज माइंडसेट का, ये सलीका है संस्कार का, ये सलीका है संस्कृति का, ये सलीका है जीवन दर्शन का, और ये सलीका है भारत की सभ्यता का। अगर हम उस मर्यादा को लांघते हैं तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। अब हेट स्पीच की जब बात आती है तो मैं सोच रहा था, मैं तो कानून पढ़ा नहीं हूं, पर मैं सोच रहा था कि एक आम व्यक्ति की तरह हेट स्पीच का मतलब क्या। सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया जो देश के खिलाफ हो, जो सामाजिक सरोकार के खिलाफ हो, जो मानवता के खिलाफ हो, जो समरसता के खिलाफ हो, जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती हो, मनुष्य मनुष्य में भेद करती हो, संविधान के खिलाफ हो, आम जनजीवन के खिलाफ हो, ये सब हेट स्पीच में आता है। फिर मैंने सोचा कि हेट स्पीच को कैसे परिभाषित करें। ये तो एक कॉमन आदमी का हो गया कि ये होगा तो हेट स्पीच में आएगा। पर मैंने कहा लॉ स्टूडेंट्स के सामने बोलना है, और उनकी डीन प्रोफेसर अंजू वाली टिक्कू भी बैठी हुई हैं यहाँ पे, डायरेक्टर बैठे हैं, बाकी बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, कि हेट स्पीच की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है हेट स्पीच पे। क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार भी दिए, संविधान ने हमें कर्तव्य भी दिए। प्रोफेसर मैडम ने ठीक कहा कि एक बैलेंस है, राइट बैलेंस है अधिकारों और कर्तव्यों का। तो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो क्या कहते हैं कि भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। तो जब भी कभी बात होती है कुछ तो बोलते हैं हमारा तो अधिकार ही है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मौलिक है, फंडामेंटल है। लेकिन खाली 19(1)(a) ही पढ़कर तो काम नहीं चलेगा ना। हमारे देश की एक और आदत है, जैसे कहा गया कि अहिंसा परमो धर्मः, ये आधी बात है, और देश चला दिया इससे और चल पड़ा देश क्या अहिंसा अहिंसा परम धर्म है। सही बात है, इसमें तो आधी बात भी गलत तो नहीं है, गलत ये भी नहीं है। 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) अहिंसा परमो धर्मः, पर उसके बाद क्या दूसरी लाइन, धर्म हिंसा तथैव च,
यानी अहिंसा परम धर्म है, ये सही है, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा कर्म है। आधी बात से उसका मतलब निकल गया, कुछ और मतलब बन गया। इसी तरीके से जो लोग इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रोज बात करते हैं, दिन में करते हैं, रात में करते हैं, बहुत करते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) ही तो पढ़ते हैं। इसी कारण से, क्योंकि ये जो अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये निरंकुश थोड़ी दिए। इसके साथ ही साथ आर्टिकल का दूसरा हिस्सा 19(2) भी तो इसके साथ ही आता है। जैसे अहिंसा परमो धर्मो दिया, और उसके साथ दूसरी लाइन भी दी। 19(2) क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो कहता है, इसमें अंकुश लगाता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। क्या कहता है, मैं कोट करना चाहूंगा, भारत के किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा, नैतिकता को खतरा एवं न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसावा नहीं होना चाहिए। तो जो मैं कॉमन सेंस से कह रहा था, उसको जरा टेक्निकल टर्म्स में आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसीलिए जब हम कहते हैं, पर चलो उससे पहले में एक और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267वीं रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि नफरत भरे भाषण को मुख्य रूप से रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ आदि के आधार पर परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ नफरत भड़काने के रूप में बताया गया। तो लॉ कमीशन भी कह रहा है, आर्टिकल भी कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं एक और बात मानता हूं, इसी कारण से कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जो बात है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ यूटोपिया। We all should remember this. Absolute freedom is a state of utopia. It doesn't exist, and it should not exist also. It doesn't exist, and it should not exist also. मैंने सही कहा, माई स्पेस, माई स्पेस, माई स्पेस। तो कहीं ना कहीं अवर स्पेस तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना उसमें। सबको चाहिए चाहिए चाहिए, कोई देगा नहीं तो सबको मिलेगा नहीं। वो देने की जो भावना है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है कर्तव्यों के माध्यम से। इसी कारण से कई बार मैं सोचता हूं कि वो क्या सोच है जो हेट स्पीच को जन्म देती है। और ये यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ है इलेक्टोरल, जो साथ में हमने इसके साथ में डाल दिया। चुनावों में इसका क्या है, चुनाव के लिए इसका क्या है, चुनावी राजनीति में हेट स्पीच का क्या मतलब है। राजनेता को लगता है कि अगर वो हेट स्पीच देगा तो उसको वोट मिलेंगे, बढ़ेंगे उसके वोट, तभी वो देता है। इसमें कसूर राजनेताओं का या हमारा है जो इससे प्रभावित होते हैं। याद रखना जो बच्चे हैं, राजनेता, राज्यपाल साहब बैठे हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूं, थोड़ा घबरा के भी कह रहा हूं, राजनेता सबसे समझदार होता है। ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि राजनेता समझदार नहीं होता। इस देश में सबसे समझदार राजनेता होता है। वे जनता के मन को पढ़ता है, जनता के मर्म को पढ़ता है, जनता क्या सोच रही है समय से पहले पढ़ता है। ये क्वालिटी हर एक में नहीं होती, क्योंकि जनता से उसका रोज का कनेक्ट है। वो कोई बात ऐसे नहीं बोल देता। अगर एक समझदार व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है तो उसको ये लग रहा है कि मैं इसे बोलूंगा तो मुझे चुनाव में फायदा होगा। तो कसूर उसका तो थोड़ा है, हमारा ज्यादा है कि जो हम फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर राजनेताओं को ये लगे कि हेट स्पीच देंगे और वोट नहीं मिलेंगे, कोई भी राजनेता हेट स्पीच नहीं देगा। बच्चों मान के चलना, और जो टीचर्स हैं वो मान के चलना, और विश्वविद्यालयों का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है मान के चलना कि नेता लोग हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम तो 10 लोगों से मिलते होंगे, वो 1000 लोगों से रोज मिलते हैं। उनका जीवन यदि हमको 5 दिन जीना पड़ जाए तो हमको आफत आ जाएगी। इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना मेहनत का है, तो वो मर्म समझते हैं जनता का कि अच्छा लगेगा, ऐसा बोलूंगा तो मुझको फायदा होगा, और वो हेट स्पीच में आ जाता है। तो जनता को भी, हम सबको भी अपने मन को, अगर इस विषय से बाहर आना है हेट स्पीच के,
हमको अपना मन बनाने की जरूरत है कि यदि कोई ऐसे बोलेगा तो चुनाव में उसको वोट नहीं देंगे। आप देखिए ना, कोई नहीं बोलेगा, आप वोट देते रहिए, वो मजबूर है बेचारा, बोल रहा है, कसूर उसका आ जाता है क्योंकि वो बोल रहा है। इसीलिए मैंने कहा सिविलाइज माइंडसेट, संस्कार, संस्कृति, इससे जुड़ा सब्जेक्ट है। और मेरे विचार से तो वो स्पीच सबसे खतरनाक मानता हूं जो देश के खिलाफ हो, देश के सौहार्द के खिलाफ हो। और यदि हमको लिस्ट बनानी हो कि कौन कौन सी हेट स्पीच है और कौन सी सबसे खराब है, मेरा ऐसा मानना है कि पहला नंबर जाएगा कि देश के विरोध में बोलने वाले लोग। ये सबसे पहली कैटेगरी है हेट स्पीच की। मैं एक पैराग्राफ कोट करना चाहूंगा आप सबके लिए। अरुंधति राय देश की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनकी एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा। कोट, द इंडियन स्टेट फ्रॉम द मोमेंट इट बिकेम ए सॉवरन स्टेट, फ्रॉम द मोमेंट इट शुक ऑफ द शैकल्स ऑफ colonialism, it became a colonial state and it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Telangana, Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it is like a state that has been perpetually at war and a military war, deploying the army against its own people. The state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way the democratic Indian state has. And if you look at who are these people that the Indian state chose to fight, in all northeastern states, they were tribal people. In Kashmir, it was Muslims. In Telangana, it was tribal people. Hyderabad, it was Muslims. In Goa, it is Christian. In Punjab, it is Sikh. So you see this perpetual upper caste Hindu state perpetually at war. Unquote. ये है हेट स्पीच। ये प्योर डेफिनेशन है और अरुंधति राय और ऐसे सब पढ़े लिखे लोगों को बचना चाहिए इस तरह से बोलने से। उनको भी बचना चाहिए, ना उनके हित में है ना देश के हित में है, और बच्चों के और लोगों के और नागरिकों के मनों को कलुषित करने का काम करते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव रूप से एक बात कहने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा है इस मामले में। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सामाजिक जीवन में जो है उन्हें बचना चाहिए इस तरह की स्पीच देने से। अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल दिया मैंने हेट स्पीच का। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और ये कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। अपितु भारत के हर नागरिक जिसका भारत की एकता, अखंडता और संविधान में आस्था है, जो उसे एक उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है, ये उन अधिकारों और व्यवस्था पर सीधा हमला है। इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो किसी भी हेट स्पीच को हमें मानना चाहिए कि बोलने वाला सही नहीं बोल रहा है, और कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 जिस भी कैटेगरी की है स्पीच, समर्थन, एप्रिसिएशन, इन सबसे दूर रहना चाहिए और समझाने का प्रयास करना चाहिए कि ये तरीका नहीं देश में बोलने का। लोकतंत्र लोगों के कारण है, अच्छे मनों के कारण इस देश में लोकतंत्र है, भारत के ब्लड में लोकतंत्र है, तो वो ऐसे नहीं है। इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर्तव्यों के साथ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ जुड़ी हुई है। तो स्वस्थ और प्रभावी लोकतंत्र हमारी ताकत है, ये संविधान की भी ताकत है और भारत की भी ताकत है। मत बड़ा बनाओ ऐसे लोगों को। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि मत बड़ा बनाओ ऐसे लोगों को जो नफरत की फसल बोते हैं, नफरत फैलाते हैं। भारत एक सभ्य और संस्कारी देश है। भारत के लोगों को अपने मनों को पक्का करने की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिएगा ये खत्म हो जाएंगे। आप सपोर्ट करते रहेंगे, ये पनपते रहेंगे। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ये पनपेंगे। ये हमारे ऊपर है। हमें अपने मनों को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, देश के हितों की चिंता करनी है, ये हमारा काम है। और भारत के जीवन का आधार है मध्य मार्ग।
मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के जो जीवन मूल्य हैं उनका आधार है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग मतलब कि हम जिंदगी में हम ऐसा करें कि काम दोनों का चलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। जिंदगी में हम ऐसा करें कि काम दोनों का चलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। ऐसा माइंडसेट होता है सिविलाइज माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट होता है संस्कारी माइंडसेट, संस्कृति से जुड़ा हुआ माइंडसेट। और भारत की जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जिस देश ने किसी पे आक्रमण नहीं किया, आक्रमण झेले जरूर हैं लेकिन आक्रमण नहीं किया, ऐसी परिपक्व जिस देश की संस्कृति है उसके नागरिकों को ऐसा किसी भी हेट स्पीच को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। थोड़े समय में किसी को फायदा हो सकता है पर लॉन्ग रन में देश को नुकसान होता है। इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। अभी भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे कुछ दो, तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे एक सीख देती हूँ। तो उन्होंने बताया कि क्या माँ ने सीख क्या दी प्रधानमंत्री जी को, कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। ये सब हमारे लिए भी तो उतनी है। प्रधानमंत्री की माँ ने प्रधानमंत्री जी के लिए कही, पर ये हम सब के लिए भी तो है। अगर हम ये मूल सीख उनसे ले लेते हैं तो हेट स्पीच से हम अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। जिस दिन हेट स्पीच से राजनीतिक लाभ मिलना बंद हो जाएगा, ये हेट स्पीच बंद हो जाएंगे। जिस दिन से हेट स्पीचेस से रिकॉग्निशन मिलना बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे। जिस दिन से हेट स्पीचेस से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे। कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको फंड करती है हेट स्पीच वालों को, वो बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएंगी। इसलिए हम सब भारत के लोगों का ये कर्तव्य बनता है, मूलभूत कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को बड़ा न बनाएं। नफरती भाषा बोलने वालों को मत दो वोट, आप अपना मन बनाओ, देखो आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। और भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रभावी लोकतंत्र है। हमने चर्चिल को भी गलत सिद्ध किया, कितने यूरोपियन देशों को हमने गलत सिद्ध किया। भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए कभी संघर्ष नहीं हुआ 75 साल में। जो पार्टी हारी चुपचाप उसने छोड़ा, नई पार्टी आई, उसने अपना संभाला। बहुत सारे विश्व के देशों में ऐसी कोई डेमोक्रेसी का दम्भ तो भरते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत सहजता और सरलता से चलता है। क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा उसका लोकतंत्र होगा, और भारत का समाज लोकतंत्र उनके ब्लड में है। हमें सिर्फ ये रहना है, ऐसे लोगों को बड़ा नहीं बनाना जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मानते हैं, 19(1)(a) को तो मानते हैं, पर 19(1)(b) को नहीं मानते हैं। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 19(1)(a) है। आप सब इस सारे सामाजिक परिवेश में और भारत के परिवेश में अपने मन को अच्छा रखना, अपने दूसरों के मन को अच्छा रखना, आप एक रोल मॉडल बनो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम है कि देश को दिशा दे सकते हैं। अगर आप रोल मॉडल बन सकते हैं तो समझिए कि आप कुछ अच्छा करेंगे। आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपका बड़ा लंबा प्रभाव पड़ेगा। याद रखना इन दोनों चीजों को। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you, sir, for your profound and inspiring words. Your guidance continues to motivate our entire university community. We now arrive at the most awaited segment of today's symposium. It is a moment of immense honor to invite our chief guest, His Excellency Shri Shiv Pratap Shukla Ji, Honorable Governor of Himachal Pradesh. A statesman with an illustrious political career spanning decades, His Excellency has served the nation as the Union Minister of State for Finance and was a distinguished member of Rajya Sabha from Uttar Pradesh. His extensive legislative experience, including 4 terms as a member of Legislative Assembly, gives him a unique and profound understanding of the intersection of law, governance, and public discourse. We are truly honored by your presence, sir. Sir's illustrious journey from a student leader in Gorakhpur to a 4-time legislator, union minister, and now a constitutional head of the state reflects an unwavering commitment to public life and national development. Sir, with utmost respect, we invite you to deliver the keynote address on the theme Hate Speech and Electoral Politics in India.
पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज ये इस डैश पर विराजमान इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कुलपति डॉक्टर योगेश सिंह जी, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोफेसर अंजुबाई टिकू जी, डायरेक्टर इंटीग्रल लॉ कोर्स प्रोफेसर एल पुष्प कुमार जी, और इस प्रतिष्ठित सभागार में बैठे हुए प्रतिष्ठित जन तथा विद्यार्थी मित्रों, भारत मैं समझता हूं कि विश्व का सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश है। और ये केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि आज विश्व के अनेक देशों में जब युद्ध की विभीषिका चल रही है तो भारत के लोकतांत्रिक पद्धति वाले देश का प्रधानमंत्री इस बात को उन सभी लोगों से जो शस्त्रों के द्वारा अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं कहता है, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल शांति से ही निकाला जा सकता है, और शांति तभी आ सकती है जब शब्दों की वाचालता न हो करके शब्दों की मर्यादा हो। विषय इसी में पूरी तौर पर समाहित हो जाता है। घृणास्पद भाषण, हेट स्पीच और चुनावी राजनीति। मुझे लगता है कि आप इस पर विचार करो कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति अत्यधिक पढ़ा हुआ वो भी, और जो बिल्कुल ना पढ़ा हुआ वो भी इस बात को खुल करके कहता है कि अगर शब्दों की मर्यादा होती तो इस देश में महाभारत नहीं होता। अपने कुल वधू को भरी सभा में निर्वस्त्र करना और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए यह कहना कि इसके केस को खींचते हुए लेकर के आओ दुशासन, मेरे पास बिठाओ। शब्द मुक्त तब हो जाते हैं जब सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति अंधा हो। अंधा था कि नहीं था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन केवल अपने पुत्र मोह के कारण अपने कुल वधू को भी लज्जित होते हुए देख करके अगर वो नहीं चेतता है तो वही अंधा होता है। महाभारत का यही कारण था जिसने भारत के इतिहास को पूरी तौर पर
रचने का काम किया। दो धाराएं हैं, एक महाभारत की और एक रामायण की। दुर्योधन के द्वारा महाभारत होता है और उस समय को याद कीजिए जब राम ने लक्ष्मण को अंतिम समय में रावण के पास भेजा था। कि जाओ, महाप्रतापी विश्व विजयी कालजयी और विद्वता में सबको पीछे छोड़ने वाले रावण से अंतिम समय में कुछ सीख ले लो। और जब जाकर के लक्ष्मण हाथ जोड़ करके बैठते हैं, रावण से कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र श्री राम का अनुज, मैं आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए आया हूं। तो आंख खोल करके रावण इसी बात को कहता है कि लक्ष्मण, आज मैं पराजित इस नाते हो रहा हूं और राम विजयी इस नाते हो रहे हैं कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई है और मेरे पास कोई लक्ष्मण नहीं है। और कहते हैं कि यह मत सोचो कि मुझे ज्ञान नहीं था कि राम कौन है, लेकिन मैं जिस अहंकार से भरा हुआ था उस अहंकार के कारण मैं राम से युद्ध कर रहा था। मैंने ज्ञान विज्ञान सब कुछ जानने के बावजूद भी अहंकार को जाना नहीं और राम अहंकार को जानते थे लेकिन अहंकार अपने पास रखे नहीं। इसी में होता है द्वंद्व। आप ये सोचिए कि प्रोफेसर योगेश सिंह जी ये कह रहे थे ना, कई दृष्टांत दिए मधुर वाणी के संदर्भ में। वास्तविकता यही है कि जितनी भी मधुर वाणी आप बोलेंगे उतना ही आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। देखिए, 2 हाथ से 10 लोगों को जीता नहीं जा सकता है। 2 हाथ से 10 लोगों को कभी भी आप नहीं जीत पाओगे, लेकिन 2 हाथ जोड़ करके करोड़ों लोगों को अपने पक्ष में आप कर सकते हैं। ऐसे ही शब्द है कि शब्दों को क्या आप रखते हो, कैसा विषय रखते हो। आज हम अपने देश में पार्लियामेंट में भी जब रहा तो लोग जो शब्द बोल देते थे उसको निकालना पड़ता था। कुछ शब्द ऐसे होते थे जिसको कि ये निकाल दीजिए, उस पर भी थोड़ी लड़ाई चलती थी कि नहीं साहब इसका कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अंततः अगर गलत रहता था तो निकाला जाता था, पीठ निर्णय देती थी। आज की स्थिति ये हो चुकी है। बड़ी अच्छी बातें आज योगेश जी ने कही
किसी के विषय में ही कह देना कि व्यक्ति गलत है, ये है, वो है, ये नहीं कोई जरूरत है। हमारे लिए इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता होनी चाहिए, हम रहें या न रहें, यह देश रहना चाहिए। आज की स्थिति दूसरी है। हमको रहना चाहिए, हम अपने अनुसार इस देश को परिभाषित करेंगे। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जब 1901 की बात कुलपति जी बता रहे थे, फिर 1992 की बात बताएं। देखिए शुरुआत कहाँ हो रही है। मध्य मार्ग की बात जो आपने कहा, आप उठा करके, आप सभी लॉ के स्टूडेंट हो, आप सभी उठा करके देखिए, आर्टिकल 25 भी तो है, इसी तरह से है। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता भी है, और आर्टिकल 25 में भी इस हेट स्पीच की बात है। पराकाष्ठा किसी की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के मध्य मार्ग की बात आपने कहा, रोकना चाहिए लोगों को। हमारा देश नहीं, हम देश के अगर इस बात को लेकर के चलेंगे तो यह देश पूरी तौर पर व्यवस्थित रहेगा। कभी कभी लोगों को ये नहीं लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। भाई धनुष से जब तीर निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, मुंह से शब्द निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। तो जो वापस नहीं आते हैं उसके संदर्भ में विचार करना चाहिए कि तीर हम किस स्थान पर छोड़ रहे हैं और शब्दों के बाढ़ किसके ऊपर छोड़ रहे हैं। आज तो लगता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कहा गया कि जो आपसे श्रेष्ठ हो, चाहे उम्र में हो चाहे पद में हो, उसके श्रेष्ठता का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। आज की राजनीति में जिस प्रकार से इस चुनावी राजनीति में लोगों ने इसको भी छोड़ दिया है, और ये सब इस नाते कहा गया कि मर्यादा के अनुसार जीवन जीना यह आवश्यक है। मर्यादा के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना यह आवश्यक है। हर समय इस नाते मर्यादा को समझाया गया है। आप जब आज के संदर्भ में विचार करोगे, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र और अंतर्राष्ट्रीय संधियां, इसमें भी एक एक शब्दों को बड़ा जोड़ जोड़ करके रखा गया है। इसमें भी साफ साफ इस बात को कहा गया है कि घृणा को उत्पन्न करने वाले किसी भी शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संधियों में नहीं होना चाहिए। अगर घृणा का जिससे परिभाषक होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि में नहीं कर सकते हो
तो अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय विषय ले जाकर के बनाने की क्या आवश्यकता है? आप सोचिए। आज मैं कह सकता हूं, देश के लिए कह सकता हूं, क्या यह आवश्यक था कि जब देश की स्वतंत्रता के बाद हमारी सेनाएं बढ़ती हुई उन कबायलियों को पूरी तौर परास्त करते हुए जा रही थी, तो क्या यह आवश्यक था कि कश्मीर की समस्या को भारत जो विजय करते हुए जा रहा था उसको ले जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़ा कर दे? अगर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़ा न किया होता, हर पार्टी ये कहती है जो भी सत्ता में आता है कि भाई ठीक है, लाओ कश्मीर को लाओ, तब शायद आज कहने की आवश्यकता नहीं होती कि कश्मीर को लाओ। आज गुलाम कश्मीर और स्वतंत्र कश्मीर की बात नहीं होती, आज पूरा का पूरा कश्मीर हमारा रहता। लेकिन हमारी भूल उस समय की ऐसी थी कि हम स्वयं अपनी समस्या को ले जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में दे दिए और आज तक हल नहीं हो पाया। आज तक हल नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ एक न्यायालय है। हमारे भारत के भी न्यायालयों में हजारों केस ऐसे पड़े हुए हैं जिस पर जुडिशरी इस बात को कहती तो है कि तुरंत इसका हल निकालना चाहिए, केसों को खत्म करना चाहिए, लेकिन 17-17, 18-18 साल से पड़े हुए केस को सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं खत्म कर पा रहा है, उस पर विचार नहीं कर रहा है, डेट पर डेट पड़ रही है। और जब डेट पर डेट पड़ रही है तो उसमें विषय बन रहा है, तो उस विषय में भी हेट स्पीच की बात आ रही है। ये कब देखा जाएगा? ठीक है, हमारे देश में तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के सुख की संकल्पना अगर वेदों ने किया तो उसने कहीं हेट स्पीच की बात तो की नहीं। वो तो सबको जोड़ने का काम किया। और हर परंपरा में देख लीजिए कि मैं जो आर्टिकल 25 की बात कर रहा था, और एक बहुत बड़ी बात कबीर ने तब कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। केवल हमारा नहीं है, और जब सबका होगा तो मुझे लगता है हेट स्पीच नहीं होगी। भाई ये सच है कि उस समय जब चरम पर था मुगल शासन, तब कबीर ने कहा था काकर पात्र जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, अताचड़ मुल्ला भाग गए क्या बहरा हुआ खुदा है। उस समय कबीर ने कहा था, खुल करके कहा था, क्योंकि समाज सुधारक के रूप में थे, किसी के लिए हेट स्पीच नहीं दिया उन्होंने दूसरे पक्ष के लिए भी बहुत साफ साफ ये कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर का चकिया कोई न पूछे जाका पीसा खाए।
दोनों बात का सभी लोगों को, वह लोग जैसे आज हर चीज को लेकर के सड़क पर उतर जाते हैं, अकेला कबीर उस समय सड़क पर उतर करके ये कहा कि देखो मैं उतरा हुआ हूं, अगर तुमको अपना घर फूंक करके मेरे साथ चलना हो तो चलो। इस प्रकार से हेट स्पीच को कबीर ने उस समय नष्ट करने का काम किया था। आज क्या है, हाँ तो बड़े से बड़े लोगों को हम कुछ कह दें। भाई अभी मुझे ये पुस्तक दी गई, सनातन संवाद तथा कथाएं, मैं थोड़ा ऐसे बैठ करके देखने लगा और एक बड़ा अच्छा मुझे वो शब्द मिला कि विश्वामित्र से लक्ष्मण कहते हैं, दानव धर्मियों के मानव भूमि पर आने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देना चाहिए ऋषिवर? तो विश्वामित्र कहते हैं क्योंकि मानवता स्वभावतः और सिद्धांततः सर्व समावेशी है कुमार, और दानव धर्म स्वयं रूपांतरित होकर के प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में दानव प्रवृत्ति राक्षस धर्म के रूप में उदित हुई है। यह धर्म पहले नहीं था। रावण स्वयं इस धर्म का प्रणेता है। रावण स्वयं इस धर्म का प्रणेता है, क्योंकि अब आप सोचिए कि ऋषि पुलस्त का वो नाती, विश्वेश्वरा का पुत्र, लेकिन उसके नाना दैत्यराज सुमाली थे। तो दैत्यराज सुमाली दानव प्रकृति के कारण रावण पर भी उसी प्रकार से प्रभाव डाले, और जो रावण महापंडित था, उसके ऊपर दैत्य संस्कृति का अहंकार आ गया और उसने लोगों को हेट स्पीच के आधार पर पूरी तौर पर परास्त करने का काम किया, और सब पर विजय प्राप्त करने के बाद वो आया, लंका का राजा बना। लंका का राजा तब बना जब उसके भ्राता कुबेर की लंका थी, उस लंका को भी कुबेर को हटा करके ले लिया, स्वर्णमयी लंका। अब देखिए वो ले रहा है, और राम के लिए क्या होता है जब लक्ष्मण कहते हैं कि कितनी सुंदर लंका है, क्या यहाँ हमको रहना चाहिए, हम यहाँ क्यों न रहें? राम से कहते हैं, तो राम कहते हैं कि एक कुबेर से उसी का भाई जबरन सोने की लंका को छीन करके अपनी राजधानी बनाता है, और एक राम क्या कहते हैं, अपिच स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी। ये सोने की लंका है लक्ष्मण, लेकिन मुझे रुचती नहीं है, क्योंकि जो अपनी जन्मी जन्मभूमि अयोध्या है ना, वह स्वर्ग से भी बड़ी है, क्योंकि हमने जन्म लिया है, हमारा बचपन बीता है, हमारे माता पिता की गोद हमें पाली पोसी है, और वह अयोध्या जिसमें कभी युद्ध ही नहीं हुआ, उसी नाते उसका नाम अयोध्या पड़ा। तो राम कहते हैं, उसी को परिभाषित लक्ष्मण को उपदेश देते हुए रावण कहता है। और आज हमारे लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ भी भारत के लोकतंत्र खतरे में है। इस बात को बड़े आसानी से कहा जाता है, बड़े धड़ल्ले से कहा जाते हैं, देश के संदर्भ में कह रहे हैं या देश विरोधी कह रहे हैं, इस बात को सोचते भी नहीं है, बड़े आसानी से कहा जाते हैं।
कितनी जिंदगियां हमारे यहां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद के विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं इन आतंकवादियों के साथ अन्याय हो रहा है। आप भी विश्वविद्यालय के छात्र हो, और कभी कभी एक अन्य विश्वविद्यालय में भी जो नारे लगते हैं, वो नारे क्या हैं? उस नारों को पोषण कौन कर रहा है? वह हेट स्पीच है कि नहीं है? देखो, मैं बहुत कुछ संवैधानिक दायरे में रख करके बोल रहा हूं। मेरे लिए ये नहीं है कि कभी कभी ये होता है कि सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये भी कहा गया है सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। देश के लिए मर्यादा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारी और देश इन दोनों के बीच में तुलना करने की बात हो तो फिर वही विषय आता है, हम रहें या न रहें, या देश रहना चाहिए। आप सभी लोगों को बड़े खुल करके, चाहे किसी को भी कहना हो, हेट स्पीच के संदर्भ में कहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि नहीं, ये हेट स्पीच है, वो चाहे कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता किसी को भी इतनी नहीं देनी चाहिए कि उससे नुकसान देश का हो रहा हो। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज देखिए, एक बार आइंस्टीन ने इस बात को कहा था कि भविष्य में जब भी इतिहास को खंगाला जाएगा तो लोग ये देखेंगे कि वह व्यक्ति कौन सा था, हाड़ मांस का व्यक्ति, जिसने ऐसे ऐसे कार्य कर डाले कि न केवल भारत बल्कि विश्व के देशों में भी गांधी के नाम से जाना गया। सत्य की बात, अहिंसा की बात बड़ी कठोरता के साथ गांधी ने स्वीकार किया था, और ये बताने का लोगों को काम किया था कि हम हिंसा नहीं मानते हैं। तब उन्होंने कहा था कि कटु बाड़ी भी हिंसा में मारी जाती है। बाड़ी अगर कटु हो तो अभी एक हिंसा है। हमारे यहां निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि जो प्रत्येक क्षण संवाद का स्तर गिरता जा रहा है, वो चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबलीज में हो, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो एक पार्टी के होते हैं, और जब पार्टी के होते हैं तो पार्टी के जो मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर अपने चुनाव के क्षेत्र में भाषण करते हैं।
और जब चुनाव जीत जाते हैं तो एमएलए या एमपी हो जाते हैं, और जब एमएलए और एमपी हो जाते हैं तो लिखा जाता है कि फला लोकसभा के क्षेत्र के यह सांसद है या फला क्षेत्र के यह विधायक हैं। यह कहीं नहीं लिखा जाता है कि पार्टी के हैं। लिखा जाता है तब पार्टी के हैं जब असेंबली में या पार्लियामेंट में किसी मतदान की आवश्यकता होती है कि यह इस पार्टी के हैं, इधर हाँ लाभी के या ना लाभी के। तो हाँ या ना लाभी का विषय जब आ जाता है तब विभिन्न पार्टियों का वर्णन अपने आप हो जाता है। लेकिन जब वो भी वह क्षेत्र में जाता है तो कार्यक्रम तो अपने पार्टी का करता है, लेकिन जनता उसे यही कहती है कि मैंने आपको चुन करके भेजा, आप मेरे विधायक हैं। फिर वहां कोई ये नहीं रह जाता है कि हमने वोट दिया था कि नहीं दिया था, सबके आप हो जाते हैं। और आज मुझे लगता है कि अगर राजनीति में, वो भी चुनावी राजनीति में, लोग इस बात का विचार करें कि आखिरकार चुने जाने के बाद हम एमएलए हो जाते हैं, चुने जाने के बाद हम एमपी हो जाते हैं, तो ऐसे सबके हो जाते हैं, सभी का काम करना मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। तो जब चुनावी क्षेत्र में जाते हैं या अपनी बात रखने के लिए जाते हैं तो क्या इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वह शब्द इस जनता के लिए हितकर होगा या नहीं होगा? अंतिम यही है। इसी पर निश्चित रूप से हमको विचार करने की आवश्यकता है। हेट स्पीच की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। सबको अपने मर्यादा का पालन करना चाहिए। उम्र में या पद में जो व्यक्ति बड़ा है, अगर चारित्रिक दृष्टि से वह पतित नहीं हुआ है तो उम्र और पद का हमेशा इज्जत करना चाहिए। हम उम्र और पद की इज्जत करेंगे तो देखो, एक संत ने बड़ी साफ शब्दों में कहा था कि भाई आप 15 मिनट पूजा करते हो या 20 मिनट पूजा करते हो, मैं नहीं जानता हूं कि उसमें तुम कितना पाते हो, लेकिन इतना जरूर जान लो कि अगर तुम अपने घर के, अपने माता पिता को सम्मान देते हुए, आदर देते हुए उनका पोषण करोगे तो मैं समझता हूं कि तुम्हारे 15 मिनट की पूजा भगवान के यहाँ 30 मिनट की पूजा में दर्ज हो जाएगी। यही है। और एक प्रश्न आया कि एक ने प्रश्न किया भगवान से कि भगवान, मेरे जैसे न जाने कितने पुतले, मेरे जैसे न जाने कितने पुतले तुमने इस संसार में बनाया है, जो आज संसार पर राज कर रहे हैं, संसार में रह रहे हैं। और भगवान, मैंने भी तुम्हारे जैसे न जाने कितने पुतले बना करके बेचे हैं। तुम्हारे जैसे न जाने कितने पुतले बना करके बेचे हैं, लेकिन शर्म उस समय आती है जब तुम्हारे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे जा करके सर झुकाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि मैं इस पुतले को पूजूं या उस पुतले को पूजूं। और शायद भगवान भी उस समय वो करते होंगे कि नहीं भाई, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भगवान ने भी ये कहा कि भाई हमसे बड़े गुरु हैं जो तुमको सीख देते हैं। सीख लेकर के जो ये गुरु लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे विद्यार्थी समाज में जाना, अनुच्छेदों को भी परिभाषित करना, मर्यादाओं की भी परिभाषित करना, और ऐसे लोगों को जो हेट स्पीच देते हो
खुल कर करके देश के लिए उन सभी लोगों को कहा कि देश अकेला आपका नहीं है, देश हम सबका है। हम सब लोगों को बोलना चाहिए तो देश के हित के लिए बोलना चाहिए तो देश रहेगा इसके लिए बोलना चाहिए। धर्म इत्यादि ये सब कुछ धारे सधर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। इस परिभाषा को लेकर के चलोगे तो मुझे लगता है शायद हम सब लोग हेट स्पीच को धीरे धीरे खत्म कर लेंगे। मेरी प्रार्थना मैं भगवान को मानता हूँ, इस नाते मेरी प्रार्थना भगवान से है कि भगवान इन लोकतंत्रवादियों से हेट स्पीच को खत्म कराओ। On behalf of everyone present here, we extend our heartfelt gratitude to you, sir, for such an enlightening and powerful address. Your words have given us a deeper perspective on this critical issue. I now invite to the podium a respected academician and exemplary mentor without whom it would be impossible to envision the success of our 5-year integrated law program, Professor Dr. L. Pushpkumar, the Director of the Integrated Law Course, Faculty of Law, University of Delhi. I request, sir, to deliver the vote of thanks and acknowledge the esteemed dignitaries and honored guests present in the August gathering. Thank you very much, Nidhi. Very good afternoon to all of you. It's my privilege now to propose the vote of thanks after this wonderful speeches that you have heard. It is a very important discussion that we have had today. Whatever we want to achieve, whatever we have achieved after independence, we are planning to have the Vikshit Bharat in 2047. Everything is possible only through two things. One is the national character, that comes through our character, and the system that we create to nourish in the country, that is through democratic politics. There are many values that make democracy successful in the country, and one of the value is the Madhya Marga that Honorable VC Sir has stated. Respecting each other, respecting every ideologies, and promoting common brotherhood. Here, there is no space for hate speech. That was been, very ideally, very effectively spoken by Honorable Governor and Honorable Vice Chancellor, sir. We have to hate hate speech. That is the message. We have to hate it. The moment we hate and eliminate hate speech, the quality of democracy will increase. So this is the wonderful message we got here today in this program. I would like to wholeheartedly thank His Excellency Shri Shiv Pratap Shukla ji, Honorable Governor of Himachal Pradesh, who is the chief guest of this program. Thank you very much, sir, for sparing your very valuable time and giving your wonderful insights, quoting Ramayana, Mahabharata, and the constitutional provisions, particularly Article 25. Thank you very much, sir, once again. I would like to thank our dynamic Vice Chancellor, who has been always showing the great path to this university. It has been already stated. And sir, I would like to tell you that at the right time, the God has brought you here to this university when we are celebrating this 100th year. And it has been stated by one of my very dear colleagues in the last meeting. What we could not achieve in the last 100 years, that you have made us to achieve, sir. In terms of the research, in terms of publication, and in terms of the international rankings.
Matoshi has stated in the last program. I really fully agree with that, and I would like to appreciate, and we are very grateful to you, sir. And we are very grateful to you for your wonderful speech linking Article 19.1a, 19.2, and the quotes that you have chosen from different wonderful authors that really inspired us. You have given a beautiful context to the hate speech and how we have to get out of that. Thank you so much for giving this great insight, sir. I would like to thank our very respected Dean ma'am, Professor Anjivali Tikku ma'am. I always used to tell ma'am, it is an honor to work with you. It is such an honor to work with you that whatever we want to achieve, unless we have such a support and the encouraging that the support, it's not possible. And if the 5-year course has come to this level, it is because of your guidance and mentorship. Thank you so much. I would like to thank all the learned faculty members from the Faculty of Law, all the 3 centers and 5-year law course. I could see the professor in charge of Campus Law Center, teachers from Campus Law Center, Law Center 1, Law Center 2. Dr. Vidhi is here, our students. Thank you so much. Really, you have made it. And all the distinguished dignitaries who have come over here, thank you very much. The Raj Bhavan officials, I would like to thank you wholeheartedly for your presence here. And I will be failing in my duty if I am not highlighting the importance of the student conveners here. The student conveners, our PhD scholars, Shivam Pandey, Sanjeev Singh, Rahul, Sachin, Pranav, thank you very much for your hard work and making this program a great success. The faculty organizing team, Dr. Avinash. Thank you, sir, for your gracious words of appreciation and for steering the symposium to success with your constant support and leadership. We have now reached the end of our symposium. May I request everyone to kindly rise for the national anthem. Symposium on hate speech and electoral politics in India. Thank you all for your gracious presence and participation. Have a wonderful afternoon ahead. I request all the students, please proceed to the outside hall for the refreshments and all the dignitaries. Thank you. Thank you very much. Wonderfully.